Why is Hyderabad famous for pearls? And do we actually get pearls there or elsewhere in India? वो बोलते हैं ना, सतर्कता ही क्या बोलते हैं उस लाइन को, जागरूकता ही सतर्कता है. Being a like jewelry lover. Not that much, but I love anti-tarnish and all. कि गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होते हुए मैंने देखा है. जो रिपॉलिशिंग के बाद में आउटकम आता है वो आपको वैसा ही फील करेगा जस्ट लाइक अ न्यू वन. मतलब जब आपने डे वन उसको खरीदा था. मतलब एक बंदा है जो कि वेलवर्थ है, मूविंग इन मर्सिडीज, बट ही इज वेयरिंग सिल्वर ज्वेलरी, मॉडर्न सिल्वर ज्वेलरी विच इज क्राफ्टेड वेरी वेल, एंड उसका जो लुक है वो सिमिलर टू डायमंड है. तो जब वो बंदा मर्सिडीज से उतर के उसको फ्लॉन्ट करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये डायमंड ज्वेलरी नहीं है. एंड लुक इट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कि भाई ट्रेड किया, आज खरीदा, एक महीने में डबल हो गया एंड बेच देंगे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. So 999 defines 99.9%. So 800 defines 80% of the purity. And 925 defines 92.5% of the purity. Today's episode is all about silver pearls and their myth and also the things that people most believes in. And today we have with us Mr. Rohit Agrawal from Hyderabad, the face behind Yashoda Pearls and Jewels. Most welcome to the show, sir. Thank you, Ankita. Okay, sir, then let's start with a quick introduction about you and your journey. So there's nothing much I can say about me. मैं खुद की तारीफ मतलब क्या करूँगा, but I'm rather an emotional guy. Loves to work in this industry because मैंने बचपन से gemstones, pearls इन्हीं में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ एक तरीके से. And about myself, more I can say, I have just completed my education in Hyderabad. And to be frank, I have not even completed my BCom. I just hold my 12th pass certificate, and I was fond of aviation industry. I wanted to be a pilot or work somewhere around the aviation industry. So I joined this AME course, which is a license-based course, aircraft maintenance engineering. But I dropped in third semester. शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था. So I just joined my father's business, and we expanded it to retail from wholesale business, and then again we expanded it to manufacturing of silver jewelry and articles. So this is about me. And about the brand, I feel I cannot say Yashoda is a brand, because brand is made by customers, not the owner himself. We cannot say that it's a brand. I believe when customers start believing in your products and your services, and वो माउथ पब्लिसिटी से बढ़ रहा है काम, एंड लोग आप में ट्रस्ट दिखाते हैं, उस ट्रस्ट के ऊपर आप खरे उतरते हो, then you can call yourself a brand. So I request your audience to join hands with us, having some trust in us, and be a part of journey to make this as a brand. I love the honesty which you have spread here कि ब्रांड हम नहीं बनाते हैं, ब्रांड ऑडियंस बनाती है और द कस्टमर्स जो उस ब्रांड के साथ ट्रस्ट फील कर रहे हैं. सो आई एम श्योर यशोदा पर्ल्स एंड ज्वेल्स हैज समथिंग रियली स्पेशल एंड आज के सेशन में हम उसको डिस्क्लोज करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so before moving with a serious question, let's get started with something like when a customer walks in, what is that myth that instantly comes in your mind? See, there are lots of myths customer follows even now. One thing what I can say is, generally when people walk to the store, and when we are showing them some kind of pearls, they tell us that sir ये तो सारे बहुत shiny है and these are perfect in shape. So generally
अगर नेचुरल पर्ल है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, उसमें लाइनिंग होनी चाहिए. सो दीज आर सम थिंग्स जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जनरली होता है. People don't maintain that good quality of pearls and then they'll start making people believe that natural अगर है तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए. It should not be perfect in shape. शाइनिंग थोड़ी कम आती है एंड ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा होता है. मतलब these are some kind of myths people still follow. सो आज के सेशन में आई एम श्योर हम ये सारे मिथ्स को डिस्क्लोज करने वाले हैं. देखते हैं हम Right. कितना आंसर कर पाते हैं. वी हैव लॉट लाइक हमने जो क्वेश्चंस प्लान किए इट्स टू मच. आई थिंक जिस किसी को भी या फिर जो भी ऑडियंस हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है उसको पर्ल्स एंड सिल्वर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आज का पॉडकास्ट देख के वो 90% ऑफ एजुकेशन उसको यहाँ से मिलने वाली है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा कुछ एजुकेट कर पाऊँ या फिर थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ. एटलीस्ट नॉट एजुकेटिंग समवन. मैं उतना मतलब काबिल हूँ या नहीं. बिफोर स्टार्टिंग आप यशोदा पर्ल्स एंड ज्वेल्स के साथ कितने सालों से हैं? Yashoda Pearls and Jewels, the retail chain of our business, family business, it was started in 2015. And जो हमारा family business है, it is since 1979. My father started it. So he started it as a manufacturer of gemstones. Basically, we used to manufacture corals, मूंगा जो हिंदी में बोलते हैं. So he used to do that in Rajasthan. And then he expanded his business to South India. 93 में हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए परमानेंटली. एंड वहाँ से भी हमने ऑपरेट करना स्टार्ट किया. हैदराबाद से साउथ इंडिया को सर्व करते थे. देन 2015 में आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ माई AME एज आई सेड अर्लियर, आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग फ्यू इश्यूज इन रिटेल इंडस्ट्री. एंड बस वैसे ही रिटेल में हम एंटर हो गए. तो दिस इज ऑल अबाउट That's how the journey started since 2015. 2015. Oh, that's great. Okay, let's quickly move towards our questions for the day. And we are super excited to hear all of those answers like क्या myths है, क्या facts है, या फिर जो आप tips या फिर steps देने वाले हो to resolve or to restore the jewelry in their perfect way. So we have all that questions in line and we are really excited. Anxiety level is very high. As we are doing a podcast itself stands for purity, unfilteredness, and something which is real and unscripted. So you can speak whatever comes in your mind because since you said you are in this industry since 2015, so you have enough experience and knowledge that our audience is waiting to listen. So we are excited here. Let's quickly move towards our very first question. So you have already given your intro, but yet I want you to give little more introduction about you and Yashoda Pearls and Jewels. So I have prepared few introduction questions here. First one is, can you tell us a bit about yourself and what inspires you to start Yashoda Pearls and Jewels? Yashoda Pearls and Jewels as a retail outlet, I can say हैदराबाद जब लोग बाग मोती खरीदते हैं तो दे हैव लॉट ऑफ उम्मीदें उनको होती है कि भाई हम अच्छी चीज़ लेके जाएं. दे आर बाइंग इट फॉर गिफ्टिंग समवन, दे आर बाइंग इट फॉर देयर वाइफ. तो उनके साथ जब चीट होते हुए देखते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैच नहीं होता है. एंड पर्ल इंडस्ट्री इज़ काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जहाँ पे यू सी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस यू कैन सी ऑनलाइन ऑन पेपर. देर आर मेनी वेज यू कैन चेक द प्राइजेस, बट पर्ल्स के प्राइजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है कहीं पे. एंड इस इंडस्ट्री में मेजरली टूरिस्ट स्पॉट्स पे लोग ऐसा करते हैं कि दे डोंट हैव अ प्राइस टैग. शक्ल देख के तिलक लगाने वाली बात जो होती है वैसे लोग करते हैं. तो आई वांटेड टू एड्रेस दैट एंड bring it in an organized way. So we are trying to do that and let's see if we can do something good. Absolutely. Let's move towards our next one. What challenges did you face while establishing Yashoda Pearls and Jewels and how did you overcome? Challenge ये था जो हमने face किया as we were into wholesale since 79 and we were working as a back-end team for most of the retailers around Hyderabad and South India. तो
we were not known as a brand, या फिर not a familiar name, not as a brand, not a familiar name in the market. So कई लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था इतना जल्दी से, जब भी लोग बाहर से परचेज करने के लिए आते थे. सो दे हैड सम नेम इन देयर माइंड कि हमें सर्टेन प्लेस से लेना है, एंड दे सडनली देखते हैं कि एक नया नाम मार्केट में आ रहा है, तो उनको सेटिस्फाई कर पाना बहुत मुश्किल होता था. बट देन हमने उनके जो क्वेरीज थे उनको एड्रेस किया प्रॉपरली. वी मेड देम बिलीव कि जो वो सुन के आ रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें सही है, काफ़ी चीज़ें गलत है. एंड अगेन जो प्राइसिंग वाली बात मैंने बोली थी, कहीं पे वो लोग जाते हैं तो एक चीज़ किसी को 1000 रुपये में मिल रही है, किसी को 10,000 में मिल रही है. तो हमने उसको ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर वे में. प्राइस टैग्स लगाए हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर, सो दैट दे कैन सी कि जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं एंड एवरीवन इज गेटिंग फॉर द सेम प्राइस, नॉट दैट उनका बार्गेनिंग स्किल कितना है. So this is what we have done, and we are trying to share as much as information with the customer, so that even though if they are like comfortable buying or not, when they are purchasing it at some other store, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कैसे टैकल करना है, या फिर कहाँ पे लूप होल जो है वो सेफगार्ड कर सकता है उनके परचेज को. जी. Got it. Okay. Another one we have in line is, what does the name Yashoda Pearls and Jewels signify, and why did you choose it for your brand? See, Yashoda Pearls and Jewels, for me, it signifies trust. And secondly, name Yashoda. Olden days, you might have learned about Sati Pratha. तो हमारी फैमिली में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स में there was a lady called Yashoda who was Sati in that period, and she is our Kuldevi. So whatever business we start with her name only. So we have a devotional and emotional touch attachment. The name is divine and pure. That's great. So, what sets Yashoda Pearls and Jewels apart from other competitors in the silver and pearls jewelry market? So, here we can talk about USPs. What are the USPs of Yashoda Pearls? Why it's different from others in the market? See, it's not completely different from the market. There are a lot of good players already doing fair business. But then major difference what you can see is we are not overpriced as compared to people working in retail industry since long time. Because हमारा जो वे ऑफ वर्किंग रहा है वो मेजरली होलसेल बिजनेस का रहा है, तो वी आर ऑलवेज रीजनेबली प्राइस्ड. एंड दूसरा ये है कि चाहकर भी हम कस्टमर को झूठ नहीं बोल पाते, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी होलसेल बिजनेस में नहीं होती है तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, बिकॉज जिस बंदे से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है. इट्स नॉट लाइक रिटेल कस्टमर जो है उसको तो कुछ पता नहीं होता है जनरली इंडस्ट्री के बारे में. तो दिस इज समथिंग विच सेट्स अस अपार्ट. एंड यूएसपी हमारा ये है कि we are also manufacturer of silver articles and jewelry. So major components and major articles and jewelry pieces are made by us. And हम खुद की डिज़ाइनिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं. ऑल्सो वी केटर योर नीड्स, लाइक मतलब कभी कोई कस्टमर वॉक इन करता है एंड ही इज़ हैविंग सर्टन आइडिया कि मुझे मेरे पर्ल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में चाहिए, या फिर मुझे ऐसे स्ट्रिंग करवाना है उनको, तो we cater them, and that is our USP. Yes, customization. Yes. Okay, that's interesting actually. How has the corporate world influenced the sales and perception of silver and pearl jewelry? This is interesting. So silver as jewelry, people see it as anklets, बिछन, टोरिंग्स, और जो मतलब ओल्डन डेज में साड़ीज के ऊपर झुक्का लटकाते थे. सो पीपल सी मोर लाइक दैट, बट कॉर्पोरेट पीपल जस्ट लाइक जीवा इज अ ब्रांड. नाउ ऑल्सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड छाया, कैरेटलेन का ब्रांड है विच इज इनटू सिल्वर. So they have turned it around, and people are more interested towards buying modern jewelry in silver, which looks similar to diamond jewelry. So you cannot easily differentiate.
So this is how the corporates are influencing, and it is growing. They're just changing the concept of Yes, silver jewelry. silver jewelry. It is moving towards modern jewelry rather than just looking at a traditional point of view. So, how have you seen the silver and pearls market evolve over the years? See, silver market, I can say 2015 when we started, that was the first time I attended IIJS in Mumbai. It's a jewelry show, biggest in India. So that time I remember there were hardly 2 or 3 participants of silver jewelry, not articles I am talking. So now when we talk about 2025, there's a individual hall dedicated to silver jewelry sellers. So there's a very big change what we can see, and the numbers speak as well. So there's a huge change, and the market is still bigger than what people think, and it's growing. It's rapidly growing. Yes. It's rapidly growing. According to your answers, now I have a rapid fire question session for you. You need to answer it quickly, okay? In shortest way as you can. So, where did you see the future of the silver and pearls market heading in the next decade? Heading in the next decade, I feel silver would be shooting up till like 7, 8 lakhs or 10 lakhs. It's all around the Instagram nowadays. And pearl, it does not need an introduction. It is always there. It will always be there. Okay. Did you think pearls are become more of statement piece in the modern fashion trends? No, it was there in the history, and it will be there in the future as well. Yeah. So it's more of it's a sign of sophistication, we can say. If you have seen this movie Crew at Netflix, Yes. there's a song Naina. So all around the song, you can see pearls worn by all 3 actresses, and you see how beautifully they have worn it. Even Diljit, you can see he is wearing pearls Pearls are a kind of jewelry that you can wear at with any outfit. any outfit. Yes. It's subtle, it's beautiful, it's admirable purely. So, in your journey with Yashoda Pearls and Jewels, which moment or customer story has been the most emotional and unforgettable for you? This will take some time. I just don't have one, but I'll say 2. So one is we have a customer named Shruti. She stays in Vihanga apartment. So she came up with an idea कि हमें वहाँ की जो मंदिर है नरसिम्हा जी की मूर्ति है, we want a Lakshmi goddess pendant for that मूर्ति, and it should be made in a way कि वो सालों साल उस मूर्ति के ऊपर मतलब वो पहन ही रहे वो. So she ordered a customized pendant which is like 4 inches in size, strung in pearls, natural pearls. So we made that necklace, and जब वो उन्होंने ऑफर किया मंदिर में, तो शी कॉल्ड मी पर्सनली कि आप देखिए कि आपकी आपकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो कितनी अच्छी लग रही है व्हेन गॉड नरसिम्हा इज वेयरिंग दैट, एंड दैट वाज इन 2018, एंड टुडे 2026 स्टिल इट इज ऑन दैट डीटी. वो मूर्ति के ऊपर आज भी वो पहनाए रखते हैं. आई सी दैट इट कनेक्ट्स मी वेरी मतलब. You can feel the goosebumps here, like And second is recently I was attending a customer. There were 2 ladies and they wanted to buy some pearls. So they have selected a few jewelry pieces, and at the billing time they were asking for some additional discount. So by the time I was recalculating, and they just said, सर आप अगर इसको और कम नहीं भी करते हो, अगर आप 2-5% कम करने की जगह बढ़ाओगे भी, तब भी हम लेंगे आपसे ही. When I asked why, so they were like, I was ready to pay 40,000 for the same kind of set in another store, but just because मुझे वहाँ पे बैंगल का साइज नहीं मिला, we were exploring other angles, and you are giving the same thing at the price of around 28,000. So we don't expect more discount. You are already reasonably priced. So customer believing in us that way, that is very emotional for me. oh yeah, actually, this is what a business needs the most, the trust of their customers, the love they shower on us. If Yashoda Pearls were a message to the world, what would that message be? Be transparent with your customers. Exactly, that's what today's modern businesses needs to adapt.
Who has been your biggest inspiration in life and in business, and why? This will again take some time. I'll be telling. There are not one or two, three. I'll state two from my own family. One is my father. When he was around 14 years old, he lost his father, and he has seen all the struggles of life. He was not into this business since his childhood, like I am. So my grandfather was a PWD contractor, and after his passing away, my father tried lots of other businesses, and उनका एक ये कहना रहा है हमेशा से व्हेन दे स्टार्टेड एजुकेटिंग अस अबाउट बिजनेस कि डरना नहीं, वॉट एवर मे कम एंड बिलीव इन योर सेल्फ. हमको टाइम से पहले जिम्मेदारी देना भी उन्होंने स्टार्ट किया, और जिम्मेदारी ऐसे नहीं कि बर्डन की तरह हो, बट जिससे कि हम सीख पाएँ कुछ बिजनेस के बारे में. प्रॉपर गाइडेंस के साथ में उन्होंने जिम्मेदारी दी कि अगर तुम खुद से नहीं करोगे, अगर मैं ही तुमको स्पून फीडिंग करता रहूँगा, तो यू वोंट लर्न एनीथिंग, यू वोंट स्टैंड ऑन योर फीट. तो दिस इज समथिंग. सेकेंड इज माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर. तो ही हैज़ इंस्पायर्ड मी वे ऑफ बिजनेस, मतलब वो कैसे करते हैं और कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. So when he is with family, he is completely with it, and when he is with business, so he is involved in it like anything. And हमारे बिजनेस में बोलते हैं जैसे नज़र जो होती है देखने के लिए, परखने के लिए, तो छाँव बोलते हैं उसको. तो ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट छाँव उनके मतलब फील्ड में. ही इज़ मोस्ट रेस्पेक्टेड वन, बीइंग टू यंग स्टिल, मतलब जहाँ पे लोग 50-60 साल की उम्र में भी इतना नज़रिया नहीं रख पाते हैं. He is one of the perfect inspiration. And third one, she is from Mumbai. There's a lady called Deepti. She is into machinery of these jewelry machinery industry में है. And उन्होंने मुझे ये सिखाया कि कस्टमर की जो नीड है, यू एड्रेस दैट प्रॉपरली. कस्टमर को आप समझोगे, उनकी नीड समझोगे, एंड यू वर्क एज पर देयर रिक्वायरमेंट. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू कैन अचीव. मतलब अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी लेके आपके पास आ रहा है, एंड आप जस्ट बोलते हो कि नहीं सर हम इसमें डील नहीं करते हैं, या फिर यू कैन नॉट एड्रेस दैट, तो शी हैज़ टॉट मी कि आप ट्राई करो एक बार, क्या पता कस्टमर का काम हो जाए, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे. तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हर. सो दीज आर द थ्री इंस्पिरेशंस. Totally worth inspiration, as you said. सब एक एक स्टेप आगे आपको इंस्पायर करते जा रहे हैं, एंड वी वुड लव टू सी दैट सेम चेंज विथ यू एज वेल, कि आप भी आगे अपने अपने यंगर वंस को इंस्पायर करो. So let's move with another section of our question. When silver turns black, does that mean it's impure? And how should we maintain its safety, restore its shine, or is pitambari okay to use in that? नो, सी अबाउट द प्योरिटी, जितना प्योर सिल्वर होगा उतना जल्दी ब्लैक होगा. इफ इट इज नॉट टर्निंग ब्लैक क्विकली, व्हेन इट इज लेफ्ट अनअटेंडेड, तो उसका मतलब ये है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ खोट है. तो सिल्वर प्योर होगा तो जल्दी ब्लैक होगा. सेकेंडली, आपके घर में जैसे आर्टिकल्स होते हैं, जनरली मंदिर में आप लोग बहुत यूज़ करते हैं, प्लेट्स होते हैं, दीपक होते हैं. तो टू रीगेन इट शाइन, या फिर वो जब ब्लैक हो जाते हैं रखे रखे, तो यू कैन यूज़ कोलगेट पाउडर. दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच Colgate powder. कोलगेट पाउडर, हाँ, उससे जो है Colgate is different and Colgate powder is different. पाउडर फॉर्म में जो कोलगेट आता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू रब ऑन सिल्वर आर्टिकल्स ड्राई फॉर्म में, and that will Restore the shine. restore the whiteness. Yes. And what about the pitambari? Pitambari is not made for silver basically. So there are lot more products in market. Pitambari is a brand, but Pitambari generally क्या होता है कि it's a hard substance. So when you rub it, आपके पास में whiteness और shine तो आ जाएगी, but then you lose some silver out of it. Okay. So that is not to be used. Why silver became so costly, and is it safe to invest during such a bull run? See, to invest in silver, when you see a bull run, I would rather suggest, suppose आपको अगर
100 ग्राम्स या 500 ग्राम्स या फिर 1000 ग्राम्स आपको लेना है, तो यू जस्ट डिवाइड इट इन 5 और 10 फेजेस, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप बाई करें, जिससे कि थोड़ा एवरेज प्राइस आता रहे एंड वेट फॉर सम डिप्स। जब बुल रन होता है तब इमीडिएटली डोंट पैनिक एंड डोंट बाई, जस्ट डोंट लिसन एंड बाई। एंड फ्रीक्वेंट बाइंग आपको करनी चाहिए। अगर आप बुल रन में कभी स्टक हो भी जाते हो तो डोंट एग्जिट इन पैनिक, कीप बाइंग, थोड़ा एक पॉज देके व्हेन द मार्केट करेक्ट्स उस टाइम पे आपको थोड़ा सा और बाइंग करना चाहिए एंड लुक इट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कि भाई ट्रेड किया, आज खरीदा, 1 महीने में डबल हो गया एंड बेच देंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन अ सेफर साइड एंड लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 1-2 years का आपका नजरिया होना चाहिए। Got it. Okay, let's move towards the next question. Is it safe for small babies to wear silver jewelries like kada, chain, pendants, or payals? See, when you talk about small babies, कई लोग होते हैं जैसे क्रेडल सेरेमनी है, वहाँ पे बच्चे को चेन पहना दी, कड़े पहना दिए, पायल पहना दी। सो बच्चा बहुत नन्ही सी जान होती है उसमें एंड जब आप चेन वगैरह पहनाते हैं, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट क्राई लाउड, तो उनको चेन जैसी चीज़ तो कभी नहीं पहनानी चाहिए जब तक कि दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, बिकॉज कभी एंटेंगल हो गया, चोक हो गया। एंड पायल वगैरह भी ऐसा होता है कि व्हेन दे आर लाइंग डाउन ऑन बेड, वो पड़े पड़े एक इम्प्रेशन पड़ जाता है उनकी स्किन पे, लेटे लेटे एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, विच इज़ हर्टिंग देम, बट दे कैन नॉट स्पीक अबाउट इट। सो इट इज़ ऑलवेज सेफर कि 6 महीने तक तो बच्चे को ज़्यादा कुछ ज्वेलरी वगैरह का तामझाम नहीं पहनाए एंड slowly you can introduce light weighted jewelry if you are fond of it. Perfect. Sounds good to me. Okay. Then now again we have rapid fire questions for silver knowledge. How can we identify real silver? What are the BIS hallmark and simple checking methods? See, BIS hallmarks as it is in gold, you see 14 karat, 18 karat, 22 karat, 24 karat. Now 10 karat is also introduced. Just like that, silver has two hallmark certifications, which is 800 and 925. So 800 identifies as 80% of purity, and 925, which is also called sterling silver. So that is 92.5% of silver. People generally they get confused between sterling silver and German silver. So sterling silver, sterling is a phrase given for the purity 92.5, and German silver, it's just a name. It's not having any silver content. It's not having any resale value. So people are generally confused about these two phrases. So you can see hallmarks on the articles, and jewelry also they have a stamp on it, or you can ask the jeweler to be like get a BIS certified thing. Also, the government of India, they are moving towards making it a compulsion for silver jewelers to have a UHID, unique hallmark identification. So you can soon be seeing that in the market. Oh, that's something quite interesting and better for the audience, better for the customers who's going to buy it. Okay, our next one is, what's the difference between German silver and sterling silver in terms of purity, price, benefits, and resale value? So resale value of silver is always there as per the market price. German silver आप अगर 1/10 of the price में भी खरीदते हैं, it is not having any resale value. It should rather be looked as गिफ्टिंग में अगर आपको कुछ गुड लुकिंग आइटम देना है, which is having silver look, but not holding any value. So there you can use this, but German silver does not contain any of the silver percentage. There's zero content of silver, and sterling silver, this is majorly used in jewelry nowadays. So when people should not be confused in these two phrases, as I said earlier. Okay, and if we compare prices between silver and this sterling silver or German silver, so are they different, or is it costly from one another, or the same prices? Silver, it's matlab rare earth metal, what people say generally. So it is obviously having a high value. Nowadays it's trading around like 2,50,000 per kg. And German silver might be like 1/10 or 1/50th of the price. I don't know more about that, because it is only named because it looks like silver, but it does not contain any silver. Okay.
What is the difference between 800 and 925 silver? सो 800 इट डिफाइंस जैसे 999 बोलते हैं कभी प्योर गोल्ड या सिल्वर को, सो 999 डिफाइंस 99.9%. So 800 defines 80% of the purity and 925 defines 92.5% of the purity. 800 is generally used in articles majorly. उससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एंड ऑल्सो गिफ्टिंग में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो 80% प्योरिटी का जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है, उसके मेकिंग चार्जेस वगैरह कम रहते हैं, अफोर्डेबल रेंज रहती है एंड ऑल्सो लाइफ कम्स, मतलब स्ट्रेंथ की वजह से लाइफ भी ज़्यादा रहती है उसकी. And 925 it is majorly used in jewelry, necklaces, bangles, all those things. So this is the difference, major difference. Okay. How should someone plan regular investment in silver? Is there something like SIP or scheme model? See, some jewelers they run just like gold schemes are there in the market. 11 months की स्कीम होती है, वैसे कई लोगों ने अभी स्टार्ट किया है सिल्वर में भी, दे स्टार्टेड दिस थिंग. आप लोग उस स्कीम के साथ भी जा सकते हैं इफ सम ज्वेलर इज डूइंग दैट. एंड सेकेंडली आप फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं, देर आर सिल्वर ETF ऑल्सो अवेलेबल. बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जस्ट लाइक SIPs, म्यूचुअल फंड्स, लैंड बैंक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट, अभी तो काफ़ी लोग इसके बारे में मतलब जानने लग गए हैं, सिल्वर ने अभी जो बुल रन दिखाया है. बट सिंस 2016 when we started manufacturing of silver articles, I used to say कि silver is also a safe haven, having some volatility much higher than gold, but if you are having a baby aged around like 2-3 years and जब वो 15-20 साल का होगा, you are worried about the education, someone is very worried about their marriage, तो 15-20 साल का नज़रिया रख के अगर आप छोटा छोटा अमाउंट इसमें अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का 10-15-20% भी करते हैं, तो यू कैन टेक अ गुड अमाउंट आउट ऑफ सिल्वर, जो कि उनकी एजुकेशन में, मैरिज में, बिजनेस सेटअप में, कई चीज़ों में हेल्प कर सकता है. So it's good, like everyone should हाँ, try एवरीवन one शुड right. थिंक अबाउट सिल्वर ऑल्सो Hmm. इन लॉन्ग रन. How do we maintain gold-plated silver jewelry so it does not turns black? सी जनरली आप ज्वेलर से जब भी कोई ज्वेलरी पीस खरीदते हैं, दे ऑफर यू अ ज्वेलरी बॉक्स, बट दैट इज मेंट फॉर अट्रैक्शन, मतलब उसमें ज्वेलरी पीस जब रखा होता है तो वो अच्छा दिखता है दिखने में, बट इट इज़ नॉट मेंट टू बी स्टोर्ड इन दोज बॉक्सेस. तो जो भी आप ज्वेलरी यूज़ करते हैं, इधर इट इज़ गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो स्टोर इट इन अ एयरटाइट बॉक्स हैविंग सम कॉटन, जिससे कि कॉटन जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद द मेटल. सो दैट इज़ द सेफेस्ट वे, जिससे कि आपकी पॉलिश की लाइफ जो है वो अच्छी रहती है. Long life हो सकती है. Okay. Another one with rapid one is, what kind of jewelry does today's youth prefer, and does Yashoda pearls and jewels cater to those trends? सी नाउअडेज जो अर्लियर डेज में हम देखते थे, जैसे मेरी मदर है, शी वॉज फॉन्ड ऑफ नेकलेस, बिग बैंगल्स, बड़ी बड़ी पायल पहनते थे. नाउ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड दे डोंट वांट टू वेयर दोज हैवी ज्वेलरी. Switched with minimalist. हाँ. So we cater largest variety of modern jewelry in our area of Hyderabad, and you can find many of the pendant chain options, small earrings, light-weighted jewelry, which you can wear comfortably while you're going to office, or some small functions are there, small events are there, even for the parties. So we cater a lot of them. Okay, so we have another long form questions. How can we identify natural pearls versus plastic pearls, and what exactly is mother of pearls? See, difference between natural pearl and plastic pearls, or generally people call it shell pearl. It is also named mother of pearl in the market. मतलब लोगों ने उसको मिसगाइडिंग का एक फॉर्म बना रखा है. मदर ऑफ पर्ल की बात करते हैं पहले. मदर ऑफ पर्ल इज इनर लाइनिंग ऑफ द ऑयस्चर, जो जिसमें पर्ल फॉर्मेशन होता है, तो उसकी इनर लाइनिंग होती है एंड दे यूज इट एज अ ज्वेलरी पीस. आपके वॉच के डायल्स में लगता है, ईयरिंग्स में लगता है, कई जगहों पे उसका यूज़ होता है, बट उसको आप राउंड इन शेप देके पर्ल नहीं बना सकते हो.
तो जो प्लास्टिक के पर्ल्स है उसको लोगों ने नाम दे दिया मदर ऑफ पर्ल फॉर मिसगाइडिंग। प्लास्टिक पर्ल्स या शेल पर्ल जो है उसका आइडेंटिफिकेशन रियल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रियल यू कैन स्क्रैच एंड सी। रियल पर्ल का जो लेयर रहेगा वो स्क्रैच करने के बाद में भी इट विल नॉट लूज इट शाइन, एंड जो डुप्लीकेट पर्ल्स रहेंगे इट विल लूज इट शाइन। वो लेयर एक बार निकल गया तो यू कैन ओनली सी अ प्लास्टिक और सिरेमिक बॉल इनसाइड। सेकेंड थिंग इज यू कैन बर्न अ पर्ल एंड यू कैन सी। रियल मोती कभी जलेगा नहीं, इवन दो इट टर्न्स ब्लैक, अगर आप उसको रब करेंगे तो इट विल क्लीन। प्लास्टिक पर्ल या तो मेल्ट हो जाएगा या फिर अगेन इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। थर्ड थिंग इज जो रियल पर्ल रहता है दैट इज कोल्डर कंपेयर टू द प्लास्टिक वंस, डुप्लीकेट वंस। मतलब अगर आप हाथ में लेके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा फील होगा, बट जो डुप्लीकेट है वो रूम टेम्परेचर पे या फिर इट विल फील वार्मर कंपेयर टू द रियल वंस। These are the differences. I have gifted something to my best friend. It was a kind of a pearl, you know, something ऐसा शेल था, उसके अंदर एक पर्ल था। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, वो बहुत अफोर्डेबल था। आई डोंट थिंक कि पर्ल्स इतने अफोर्डेबल हो सकते हैं। जनरली शेल के अंदर जब पर्ल स्टक रहता है तो उस पर्ल का कोई यूजेज नहीं है, एंड ऑल्सो दैट शेल कैन नॉट बी यूज इन अ प्रॉपर वे। तो वो अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल हो जाता है बिकॉज इट्स अ फैंसी स्टफ नाउ। तो वो एज ए गिफ्टिंग कई बार रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहता है, बट देन यू नीड टू सी कि आप जहाँ से ले रहे हो वो कितना ट्रस्टवर्दी है, एंड उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, इफ इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दैट। No, there is nothing like that. It was just a random in-store article, a gifting kind of, जहाँ पे एक pendant दिया हुआ था and earrings was there. And उस pearl को जब आप open करोगे, you will get 3 pearls into it. उसको break करना होता है और उसके अंदर से वो pearls उस pendant और earrings में attach करने होते हैं। हाँ, वो जो आप बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर पर्ल, जो मोलस्क में या फिर ऑयस्चर में रहता है वो छोटा सा, Yes. बट दैट इज फार्म्ड इन दैट वे कि आपको उसमें से जो है वो पहले उसको कट करके निकाल लेते हैं एंड अगेन दे फीड इट। जब ऑयस्चर मर जाता है तो उसको उस फैंसी बॉक्स में वो लोग स्टोर करते हैं एंड दे मेक देम फील कि आपने ऑयस्चर खोल के वो मोती निकाला है, बट द पेयर इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जो 3 मोती उसमें से निकलते हैं दे मैच इट एंड दे अगेन फीड इट। तो दैट इज द वे, बट नेचुरल है या नहीं है वो आपको सर्टिफिकेट के साथ में ही पता चलेगा। Okay. Okay. Let's move toward our next question. The metal used with pearl is often called silver alloy. Does it have resale value and what does that actually mean? सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये जो है एक मिसगाइडिंग फॉर्मेट है अगेन अनऑर्गेनाइज्ड पर्ल इंडस्ट्री का। तो जब आप मार्केट में पर्ल ज्वेलरी खरीदते हो देयर इज सम पेंडेंट और सम इयरिंग्स अटैच टू इट। तो जनरली लोग क्या करते हैं दे से दैट उसका जो मेटल है इट्स अ सिल्वर एलॉय। सो एनी टू मेटल्स मिक्स्ड आर कॉल्ड एज अ एलॉय, बट सिल्वर एलॉय का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ हैविंग सिल्वर कंटेंट। मतलब मैंने पर्सनली ये चेक किया है कई स्टोर्स पे, इवन यू हैव सम स्टोर्स इन गुड मॉल्स, एयरपोर्ट्स पे भी आपको मिलेंगे स्टोर्स। तो दे से दैट सर ये सिल्वर एलॉय का बना हुआ है एंड इट इज़ हैविंग 30 to 40% ऑफ सिल्वर कंटेंट। नाउ व्हेन द सिल्वर इज प्राइस्ड एट अराउंड 250 पर ग्राम, अगर 20 ग्राम का भी आप पेंडेंट देखते हैं तो इट्स वैल्यू शुड बी अराउंड 30-40% भी लेते हैं तो समवेयर अराउंड 2000 रुपये के आसपास तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मेटल की वैल्यू। अगर आप उसको रिसाइकिल करते हैं या फिर रीसेल करते हैं तो जो प्रीशियस मेटल है सिल्वर उसकी वैल्यू आनी चाहिए, बट देन दे से इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आप मेल्ट भी करते हैं तो यू वोंट गेट बैक सिल्वर आउट ऑफ इट। सो दैट इज सम काइंड ऑफ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन पीपल आर फॉरवर्डिंग कि ये सिल्वर एलॉय है। सिल्वर एलॉय का मतलब ये भी हो सकता है कि वो मेटल जो है सिल्वर ज्वेलरी बनाने में मिक्स होता हो, बट इट डज नॉट मीन कि आप कस्टमर को मिसगाइड करें। हाँ, तो अगर वो सिल्वर एलॉय है एंड इट इज हैविंग सम सिल्वर कंटेंट इट शुड हैव सम रीसेल वैल्यू, एटलीस्ट जो मेटल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। Okay. Okay, so where can we get natural pearls set in pure silver? So there are a lot of stores now coming up with these kind of jewelry, and those are minimal jewelries, just like single chain anklets are there, finger rings are there, necklaces are there. So आप जैसे
ऑनलाइन स्टोर्स है, जीवा है, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, दे हैव दिस। बट देन जब पर्ल आप सिल्वर में स्टडेड हो या फिर स्ट्रंग हो, तो मेक श्योर दैट दे प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट फॉर द पर्ल एज वेल, क्योंकि कई जगह पे ये मदर ऑफ पर्ल या शेल पर्ल भी यूज होता है, विच वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई जनरली। तो मेक श्योर दैट यू आर बाइंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड ब्रांड, या फिर जो आपको इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन दे सके कि जो पर्ल यूज हुआ है सिल्वर के साथ में वो भी नेचुरल है। हाँ, सो दैट सिल्वर के साथ साथ उसकी भी शाइन बरकरार रहे। Exactly. Okay. So, why is Hyderabad famous for pearls? And do we actually get pearls there or elsewhere in India? सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में पर्ल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इट देर आर टू प्लेसेस जनरली। एक तो है गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल। बट गल्फ ऑफ मन्नार में जो पर्ल एक्सट्रैक्शन होता था, पीपल यूज टू डाइव मैनुअली एंड एक्सट्रैक्ट पर्ल्स फ्रॉम द ऑयस्टर्स। Due to increased shark numbers in that region, people have stopped that now. एंड इंडिया में पर्ल फार्मिंग जो है वो कई जगहों पे स्टार्ट हुई है, जैसे केरला में स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र, मुंबई इज डूइंग दैट। बट द नंबर ऑफ पर्ल्स वी गेट इन इंडिया इज़ वेरी लेस। अगर आप FY25 की बात करोगे तो देर वर अराउंड 1 लाख पर्ल्स फॉर्म्ड इन इंडिया, विच इज़ वेरी लेस टू द बिग मार्केट। So generally we get pearls imported from China, Hong Kong, Japan, Indonesia. Those are the big markets which supplies pearls. So India में pearl formation अभी grow कर रहा है, but it will take lot of time because climate conditions should also be supporting. Okay. So, the next one is, why is Hyderabad famous for pearls? Hyderabad is called as city of pearls, and it is famous not because we get pearls in Hyderabad, but because जो artisans, जो कारीगर हैं हैदराबाद के, they knew how to manage pearls, how to drill them, how to make jewelry out of it. जैसे अपनी अपनी जगह की खासियत होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट कुंदन ज्वेलरी, देन राजस्थान इज फेमस फॉर इट। सेम अबाउट द पर्ल ज्वेलरी। सो हैदराबाद में जो नवाब का एरा था, दैट टाइम से दे वर रियली फॉन्ड ऑफ पर्ल्स। सो इट पास ऑन टू जनरेशंस एंड इट बिकेम फेमस। लोग बाग उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे एंड द इंडस्ट्री ग्रू। दैट इज व्हाई हैदराबाद इज फेमस फॉर पर्ल्स। यस। Okay. So, if we talk about that, do we actually get pearls there or elsewhere in India? नहीं, हैदराबाद में यू डोंट फाइंड एनी पर्ल्स फार्मिंग प्लेसेस और नोवेयर अराउंड तेलंगाना ऑल्सो। बट इंडिया में अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल में पर्ल्स फॉर्मेशन होता है। बट गल्फ ऑफ मन्नार इफ यू सी, इट्स इट स्टॉप्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शार्क्स इन दैट रीजन। एंड जो वहाँ के लोग थे, दे बिलीव्ड इन पर्सनल डाइविंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्ल्स, नॉट यूजिंग मॉडर्न मशीनरीज। तो वो एक रेयर पार्ट हो गया। एंड देन देर आर सम फार्मिंग प्लेसेस अराउंड मुंबई, समवेयर इन केरला, पीपल आर डूइंग इट। बट उनके जो नंबर्स आते हैं वो, अगर आप ये 25 की बात करेंगे तो अराउंड 1 लाख पर्ल्स वी गॉट इन इंडिया, विच इज़ वेरी लेस, like negligible amount of pearls what is used in the industry. So majorly we get it imported from Hong Kong, Japan, China, Indonesia. So we are relying on the imports, but we see the industry growing here. If the weather conditions are supporting well, then we can do something good in India also. Okay. Okay. Okay, so pearl farming in India is trending now. How are farmed pearls here different from imported pearls? सी, ये फार्मिंग जो वर्ड है, सब जगह पे फार्मिंग ही होती है मेजरली। सो अगर आप सॉल्ट वाटर पर्ल बोलते हो या फिर फ्रेश वाटर पर्ल बोलते हो, इट इज़ जस्ट द वाटर का जो कंटेंट है सॉल्ट का, मतलब फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी हो गया बेसिकली। पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, वहाँ पे जो पर्ल फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर पर्ल। सॉल्ट वाटर नियर बाई ओशन बेड्स जो हैं, वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट वाटर पर्ल है। सो कमिंग टू pearls found in India and pearls which are imported, those are different in a way.
इंडिया के अभी तक वेदर कंडीशंस इतने सूटेबल नहीं है कि प्रॉपर इसको जो है जो लस्ट्रस पर्ल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस वे में ये आउटकम आ पाए अभी फिलहाल जब हम देखते हैं मार्केट में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन पर्ल फार्मर्स दे बिलीव मोर इन लाइक डिफरेंट शेप्स ऑफ पर्ल्स, दे आर डूइंग सम फैंसी स्टफ, स्क्वायर शेप्स हो गए, हार्ट शेप हो गए, ऑल दोज फैंसी शेप्स आर बीइंग फार्म्ड हियर। being found here in हाँ, India. एंड जितना लश्चर और जितना राउंडनेस या जितनी फाइन क्वालिटी इंपोर्टेड पर्ल्स की आती है उतनी यहाँ पे मोस्टली नहीं आ पाती है। मतलब बहुत कम लोग हैं, जैसे 1 लाख पर्ल्स का फॉर्मेशन अगर 25 में हुआ है तो हार्डली यू कैन गेट लाइक 10,000 पर्ल्स आउट ऑफ इट विच इज मैचिंग द क्वालिटी। Okay. Okay. So, what color options do we get in natural pearls? Natural pearls we get color options like white is the major one, Yeah. then off white or creamish, then shades of peach, pink, and natural gray. And if you are talking about saltwater pearls, then we get creamish golden. And also, if we talk about Tahiti pearls, natural black, natural gray, those are kind of colors. And if we talk about dyed colors, there are like n number of colors in the pearls. So, इसकी costing में कुछ difference आता है? Like, सी नेचुरल पर्ल का जो कलर होता है उसकी नेचुरल शाइन बहुत मतलब अच्छी होती है, कॉस्ट भी उसके हिसाब से शाइन और क्वालिटी के हिसाब से डिफाइन होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइड पर्ल्स, जैसे फ्रेश वाटर पर्ल के ऊपर डाइंग होती है, ब्लैक पर्ल्स होते हैं, तो वो ब्लैक पर्ल्स की कॉस्टिंग थोड़ी सी मिनिमल रहती है, क्योंकि जिस पर्ल में इतनी ज़्यादा शाइन नहीं होती है, जनरली दोज आर यूज फॉर डाइंग, तो वो जो शाइन है वो नेचुरल शाइन नहीं है। बट वेरी गुड थिंग इज दैट जो डाइड पर्ल्स हैं उनका भी कलर कभी जाता नहीं है। इफ़ यू सी वो भी लाइफ लॉन्ग वैसे ही मेंटेन रहता है, इफ़ यू आर मेंटेनिंग पर्ल ज्वेलरी इन अ प्रॉपर वे। okay. What are freshwater pearls and how are they different from saltwater or Basra pearls? बसरा पर्ल्स, व्हेन यू से, बसरा इज अ प्लेस नियर इराक, जस्ट लाइक बे ऑफ बंगाल है, वैसे बसरा की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ से पर्ल एक्सट्रैक्शन होता था पहले, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर पर्ल। सॉल्ट वाटर पर्ल और फ्रेश वाटर पर्ल में डिफरेंस ये है कि फ्रेश वाटर पर्ल का जो ऑयस्चर होता है उसकी साइकिल जो है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, एंड वी गेट अराउंड 25 to 30 पर्ल्स आउट ऑफ अ ऑयस्चर और mollusk। एंड सॉल्ट वाटर पर्ल का जो ऑयस्चर होता है वी गेट अराउंड 3 to 5 पर्ल्स इन अ ऑयस्चर। ऑल्सो जो उसकी साइकिल होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज बसरा पर्ल जो है, ओनली द ओल्डन वंस are roaming around the market. We don't get any new Basra pearls nowadays because बसरा की खाड़ी में जब ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो वहाँ का जो ऑयस्चर था, जो पर्ल फॉर्मेशन होता था, इट डाइड कम्प्लीटली। तो वो सबसे वैल्यूएबल पर्ल्स माने जाते हैं आज, बिकॉज एग्जिस्टेंस उनका ख़त्म हो गया। जो पहले के हैं माँ के पास, दादी के पास अगर होंगे ओल्डन डेज में, सो यू आर अ लकी वन, जस्ट गो टू योर होम एंड फाइंड वन इफ दे आर होल्डिंग सम बसरा पर्ल नेकलेस, सो दैट इज़ बसरा पर्ल। एंड फ्रेश वाटर पर्ल और सॉल्ट वाटर पर्ल में एक और डिफरेंस ये है कि सॉल्ट वाटर पर्ल का जो लेयर होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, एंड ऑल्सो जो शाइन आती है उसकी वो बहुत अच्छी आती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर पर्ल, इफ़ यू कंपेयर देम साइड बाय साइड। एंड फ्रेश वाटर पर्ल्स अगेन, जब उनका फॉर्मेशन साइकिल फास्ट है एंड ऑल्सो नंबर ऑफ पर्ल्स वी गेट आउट ऑफ ऑयस्चर इज मोर, तो वो थोड़े से चीपर साइड में अवेलेबल रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 2-3,000 अप टिल 40-50,000। एंड जो सॉल्ट वाटर पर्ल्स हैं उसका एक नेकलेस का स्ट्रिंग आपके अराउंड 40-50,000 से स्टार्ट होता है एंड गोज इन लैक। Saltwater are more expensive Yes. than the freshwater ones. Okay, and Basra pearls तो अभी available ही नहीं है अपने बुरा Pearls available है, but you buy them from a renowned jeweler, not someone on the street telling you that Basra pearl है. You cannot believe them. Basra pearl is nothing less than like, अगर आप फिंगर रिंग के लिए 3 कैरेट्स का एक बसरा पर्ल भी लेते हो तो इट शुड नॉट कॉस्ट यू लेस देन अ लाख, विच इज़ इन गुड शेप, गुड शाइन। अगर ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बसरा पर्ल भी लोगे तो आपको 20-25 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। एंड जो सर्कुलेशन में है पहले से,
वही अवेलेबल है. People selling it, people having old stock. Nothing new we are getting. So it's completely ended from the market, the new flow of Basra pearls, right? So what kind of general discounts are offered on pearls and their special benefits for corporate buyers? See, market में एक trend है, discount is a part of attraction. जैसे कोई भी इंडस्ट्री में आप डिस्काउंट्स बताते हो तो people generally fall for it. True. पर्ल इंडस्ट्री में ये एक सब्जेक्ट ऑफ मिसगाइडेंस है बिकॉज पर्ल की जो प्राइजेस है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर ऑन पेपर या फिर ऑन इंटरनेट unless and until you see the quality of pearls you cannot tell what price it is and only a jeweler can say that who's dealing in pearls not general public जैसे गोल्ड का प्राइस है वो मार्केट में अवेलेबल है और एल्स इफ सम ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब लॉक आप ले रहे हो किसी कंपनी का लॉक ले लिया आपने या फिर कोई कैमरा का मॉडल है सो अ प्राइस इज डिफाइंड बाय द कंपनी पर्ल मार्केट में ऐसा होता है पर्ल इंडस्ट्री में कि एमआरपी इज डिसाइडेड बाय द सेलर मैं एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता हूँ 10,000 रुपीज़ एंड वी ऑफर अराउंड लाइक 40% लेट्स से तो उसका नेट प्राइस हो गया 6,000 प्लस टैक्सेस एंड अनदर ज्वेलर he is offering the same thing at MRP of let's say 15,000 and he is offering 50% discount. तो उसका कॉस्ट हो गया 7,500 which is more by 25% when compared to 6,000 what we are offering. So it's completely markup and markdown theory. You need to understand that. मतलब जितना आप मार्कअप करोगे उतना ही मार्कडाउन में आपको डिस्काउंट मिलेगा. एक आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट बट रेड टेप अगर आपको ब्रांड पता है इट इज़ ऑलवेज ऑन ऑफर एंड उनका ऑफर जो होता है 70% होता है सो दे आर प्राइस लाइक दैट इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने उसको मार्कअप उतना किया है एंड मार्कडाउन भी वैसे ही वो कर रहे हैं उसको 70% स्टैंडर्ड उनका डिस्काउंट है तो डोंट फॉल फॉर डिस्काउंट आई से कंपेयर नेट प्राइजेस व्हाट यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट 10,000 का प्रोडक्ट 6,000 में मिल रहा है 15,000 का 7,500 में मिल रहा है स्टिल यू आर एंडिंग अप बाइंग एट अ हायर प्राइस तो कई लोग हैं इंडस्ट्री में वो बोलते हैं वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट कॉर्पोरेट डिस्काउंट एंड हमारा इस कंपनी से टाइप है देयर इज नथिंग एज सच कोई कंपनी का टाइप होता है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग नॉट बिकॉज कि उनके कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे इट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स ऑल्सो व्हेन यू आर बाइंग पर्ल्स इन हैदराबाद देयर आर सम स्टोर्स विच नेगोशिएट अ लॉट देयर आर अगेन सम स्टोर्स लाइक अस बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि कोई कस्टमर को सस्ता बेच दिया किसी से ज़्यादा कमा लिया दिस शुड नॉट बी द वे एवरी कस्टमर इज इक्वल फॉर अस इफ इज बाइंग फॉर लाइक 10,000 इफ इज बाइंग फॉर लाइक 50,000 लेकिन उनको फेयरली ही आप डील करो उनसे ऐसा नहीं करो कि किसी को 40% दे रहे हो किसी को 50% दे रहे हो नेगोशिएशंस कर रहे हो दिस शुड बी ओनली ये होता है ना कि मान सम्मान वाला अगर कस्टमर आपको अप्रोच करता है कि यार 7,100 का हुआ है जस्ट राउंड इट ऑफ दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल बट 7,000 को आप 5,000 में नेगोशिएट कर रहे हो देन यू विल डेफिनेटली एंड अप पेइंग मोर. Got it. Okay, so let's start a quick rapid fire on pearls. So do pearls comes with a warranty? Yes, it depends on where you are buying. We provide lifetime warranty, but in conditions. And how to maintain it? See, conditions to maintain is like don't use cosmetics directly on pearls. Perfume spray कर लिया, कोई lotion लगा लिया, to avoid direct contact and provide like 15-20 minutes of gap. And you will get a long life for your pearls. Is wearing a pearl ring suitable for all rashis, and which finger should it be worn on? See, pearl ring is worn in the smallest finger, what we call tiny finger. And जनरली देखिए ये सब राशि के लिए सूटेबल है क्योंकि ठंडा वो माना जाता है इसको बाय नेचर एंड ऑल्सो इट इज़ वोन इन सिल्वर जनरली विच इज़ ऑल्सो कोल्ड मेटल तो जनरली इतना रिएक्ट नहीं करता है बट स्टिल यू कैन आस्क योर एस्ट्रोलॉजर फॉर बेटर रिजल्ट्स. Okay. Okay, let's move toward our last question for the day. So, guide for tourists buying pearls in Hyderabad and how to avoid cheating and commission places and whom to rely on. अभी आज मॉडर्न डे में वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस जस्ट लाइक रिव्यू साइट्स आर देयर जैसे ट्रिप एडवाइजर हो गए गूगल रिव्यूज आर देयर you can first check the review where you are buying from
सेकंड थिंग, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो अगर एड्रेस होती है प्रॉपरली, देन यू कैन गो हेड. जनरली क्या होता है कि टूरिस्ट आया है, ही इज रोमिंग अराउंड हैदराबाद, ही इज गोइंग फॉर साइट सीइंग, एंड ही इंटरेक्ट्स विद द टैक्सी गाय. वो बोलता है कि सर मुझे कुछ पर्स लेने हैं, कहाँ अच्छे मिलेंगे. सो मेजर ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजर ऑफ देम दे हैव देयर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे उनका कमीशन फिक्स होता है. और उसमें क्या होता है कि कस्टमर को जो नेकलेस या फिर जो ज्वेलरी पीस लगभग 5,000 में मिलना चाहिए, वो उसको 10,000 12,000 में खरीदता है, बिकॉज जो कमीशन एजेंट्स हैं उनका पेट ही नहीं भर रहा है. Yes. सो दिस इज समथिंग आप उनको पूछ सकते हो जब भी आप अगर आपको टैक्सी ड्राइवर, देखिए सब एक जैसे नहीं होते हैं. समवन वुड बी गाइडिंग यू प्रॉपरली. तो जब भी वो कहीं पे आपको लेके जा रहा है, यू एटलीस्ट कंपेयर द सेम थिंग विथ अनदर स्टोर. एटलीस्ट इफ यू आर हैविंग टाइम, यू कैन कॉल. नंबर्स आजकल सबके अवेलेबल हैं. वीडियो कॉल शॉपिंग भी मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग गुड प्लेसेस वेर एवर यू आर बाइंग इट. तो यू कैन चेक विद दीज सोर्सेज. एंड ऑल्सो कई बार ऐसा होता है, जैसे चार मीनार एक फेमस स्पॉट है पर्ल्स के लिए. तो वहाँ पे लोग बाग आप देखते होंगे रोड पे भी पर्ल्स के नेकलेस लेके घूमते हैं. तो डोंट जस्ट फॉल फॉर इट. मतलब आपको पर्ल इज अ स्टेटमेंट पीस. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी बाइंग ऑन स्ट्रीट्स. इट्स अ ज्वेलरी पीस. मतलब ये पर्ल जो है, आप अगर पढ़ोगे, ये वेद में लिखा हुआ है. इट इज़ नॉट समथिंग अभी अभी आया है, इंडस्ट्री जो है अभी नहीं बनी है इसकी. पर्ल्स आर यूज्ड फ्रॉम ओल्डन डेज. वेद में अगर उसका मेंशन है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पुरानी सभ्यता का वो हिस्सा है ये. एंड दूसरा, डोंट फॉल फॉर डिस्काउंट अट्रैक्शन. चेक फॉर जेन्युइन प्राइस कि आप कितना पे कर रहे हो. एंड जब भी आप किसी स्टोर से बाई करते हो, सी सर्टिफिकेट्स व्हेन वी प्रोवाइड, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब आप बोल सकते हो कि हम लोग हमारे एंड से प्रोवाइड कर रहे हैं. बट देन यू आस्क द स्टोर ओनर कि अगर आप आपके एंड पे भी इसको टेस्ट करवाना चाहो कहीं पे, देर आर लॉट ऑफ जेम टेस्टिंग लेबोरेटरीज अराउंड इंडिया. हर सिटी में 2 3 4 आपको मिल जाएगी इजीली. तो उनको आप सिर्फ एक चीज़ पूछो कि अगर हम हमारे एंड से टेस्ट करवाना चाहें और अगर ये डुप्लीकेट निकलता है, तो व्हाट यू डू. सो इन आवर केस, इफ वी फाउंड समथिंग लाइक, आपने हमसे कोई परचेज किया है एंड इट इज़ फाउंड डुप्लीकेट, तो वी प्रोवाइड फुल रिफंड ऑफ द परचेज. ऑल्सो हाउ मच यू हैव पेड फॉर द सर्टिफिकेशन, जो लैब का आपका टेस्टिंग चार्ज लगा है, एंड ऑल्सो आपका जो आने जाने का खर्चा है, दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड फॉर दैट. सो बाय वहीं पे करें जहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मैच हो रहा हो, एंड आपको लगे कि हाँ यहाँ पे भूल चूक नहीं हो सकती. बट देन देखिए, गलती तो होती ही है. टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पे सब लोग तो इतने फेयर नहीं होते. एंड ऑल्सो सी कि जो प्राइजेस है वो ओरली ही अगर आपको कोई बोल रहा है, तो देर इज 100% मैनिपुलेशन. क्योंकि आपको 2,000 बोलेगा, किसी और को 1,000 बोलेगा, किसी को 5,000 बोलेगा. गो फॉर द प्राइस टैग वंस. जहाँ पे प्रॉपर प्राइस टैग है, उसमें आपकी चीटिंग कम से कम होगी. Yes. Okay. So अगर कोई हैदराबाद आ रहा है and they are looking for pearls, then Yashoda Jewels and Pearls are the best place to go for. आई कैन नॉट से, मैंने मतलब पहले भी बोला कि वी आर नॉट द बेस्ट वंस, वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट वन. बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स कि वो कितना हमारे पे ट्रस्ट दिखाते हैं, एंड दे वांट अस टू बी अ ब्रांड इन फ्यूचर. एंड मोती ऐसी चीज़ है, मोती सिल्वर ज्वेलरी, ये सब चीज़ें. मोती का जैसे मैंने बताया, वेदास में इसका मतलब मेंशन्ड है. तो हीरा है सदा के लिए, ये एक कंपनी की मार्केटिंग लाइन थी ये. तो हीरा जब सदा के लिए है, तो इट्स ऑल्सो फॉर द पर्ल्स. बिकॉज सी फॉर डायमंड्स यू कैन सी, आपने अगर रिंग बनाई है या बैंगल बनाया है, अगेन यू नीड सम मोर इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफोर्डेबल. मेटल जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, विच इज़ ऑन द हायर साइड. बट पर्ल्स, इफ यू आर बाइंग पर्ल ज्वेलरी, अगर आपने आज एक नेकलेस खरीदा एंड यू आर जस्ट डन विद द नेकलेस, अगर वो ब्रेक हो भी जाता है, यू कैन कन्वर्ट दैट टू इयरिंग्स, यू कैन कन्वर्ट दैट इन बैंगल्स, यू कैन कन्वर्ट दैट इन एंकलेट्स. मतलब वो सालों साल चलने वाला है. यू कैन पास दैट टू जनरेशंस. सो इवन पर्ल्स आर फॉर लाइफ टाइम. Hmm. Okay.
as being a me, I love anti-tarnish jewelries and silver as well sometimes, but I'm more into a platinum jewelries because उनका जो color होता है वो जल्दी से fade out नहीं होता है. And I'm a kind of person कि अगर कोई ring मुझे पसंद आ रही है और मैं उसको पहन रही हूँ ना, तो I want to keep it forever. उसको मैं store करके रखूंगी और उसको मैं तब पहनूंगी जब मुझे feel होगा कि आज मेरा special day है. So बट कुछ ज्वेलरीज उसमें से ऐसी होती है जिसका कलर फेड हो भी जाता है समटाइम्स और कुछ का नहीं होता है. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या रीजन हो सकता है जब वो सेम ब्रांड होता है, लाइक सेम जगह से मैं उसको बाय कर रही हूँ बट स्टिल. जी, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, व्हेन वी से प्लैटिनम, प्लैटिनम का नेचुरल कलर वो वाइट ही है. एंड ऑल्सो हर मेटल की अपनी-अपनी जो है ये होती है, मेटलर्जी होती है, या फिर जो सरफेसेस के हिसाब से वो रिएक्ट करता है, वेदर के हिसाब से रिएक्ट करता है. तो गोल्ड जो है वो वेदर कंडीशंस में वो रिएक्ट नहीं करता है. वेदर इट इज़ लाइक ह्यूमिड, मॉइस्चर ज़्यादा है, कम है, उसका नेचुरल कलर गोल्ड है. एंड इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज़ बेसिकली. ऑक्सीजन से या फिर जो इनर्ट गैसेज़ अवेलेबल हैं आस-पास में आपके, ऑक्सीजन जनरली अवेलेबल है, H2O अवेलेबल है, पानी से कोई चीज़ रिएक्ट करती है, तो इट इज़ न्यूट्रल टू देम. प्लैटिनम इज़ ऑल्सो द सेम थिंग. सिल्वर में ऐसा क्यों है कि वो जो है ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, नॉट ब्लैक. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप सेफगार्ड नहीं कर सकते हो. देयर आर फ्यू केमिकल्स एंड एंटी टार्निश पॉलिशेस आर कमिंग. जैसे कि हमने आपको बताया रोडियम प्लेटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, तो दैट रोडियम प्लेटिंग स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम, इट डज नॉट गो अवे. और इट ऑल्सो डिपेंड्स जो ब्रांड की आप रिंग खरीद रहे हो या फिर जहाँ से आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर कितनी प्रॉपर माइक्रोन में प्लेटिंग हो रखी है, सो दैट इट डज नॉट फेड विद टाइम. एंड जैसे कई सारे कॉर्पोरेट्स है, दे आर कमिंग अप विथ लाइफ टाइम सर्विस ऑफ प्लेटिंग. जैसे आपने बोला कि आप अगर कोई रिंग खरीद रहे हो, यू वांट टू कीप इट फॉर एवर, बट जस्ट बिकॉज इट्स टर्निंग ब्लैक यू डोंट लाइक टू वेयर इट. सो देर आर मेनी वेज यू कैन ऑप्ट इन फॉर रीपॉलिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट. जो रीपॉलिशिंग के बाद में आउटकम आता है वो आपको वैसा ही फील करेगा जस्ट लाइक ए न्यू वन. मतलब जब आपने डे वन उसको खरीदा था, रीपॉलिशिंग के बाद में प्रोडक्ट में आपको इतना डिफरेंस लगेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट्स ब्रोकन फ्रॉम समवेयर, सम स्टोन्स आर फॉलन. एंड उसकी भी सर्विस जब आप मतलब प्रीशियस मेटल्स में जब खरीदते हो, दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. इमिटेशन ज्वेलरी में कई बार ऐसा होता है जो मेटल होता है, इट इज़ वे टू हार्ड देन सिल्वर एंड गोल्ड. तो जब स्टोन्स उसमें से निकल जाते हैं, वी कैन नॉट रीस्टड इट. सिल्वर एंड गोल्ड इज नॉट लाइक दैट, यू कैन रीवर्क ऑन इट. So that is something. तो सिल्वर would be a मतलब great choice for upcoming ज्वेलरी लवर्स, जो अभी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, काफ़ी लोग वो भी प्रिफर कर रहे हैं. ओके, सो आई हैव समथिंग इन माइंड कि गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होते हुए मैंने देखा है. आपका इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है, लाइक क्यों होता है वो कलर चेंज और उसमें ऐसा कुछ होता है क्या कि जिसका कलर ज्यादा ऑरेंज है वो ज्यादा प्योरिटी डिफाइन कर रहा है वहां पे. सी ऐसा नहीं है. प्योरिटी तो गोल्ड में एज वी हैव हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड्स, BIS के जो हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ही उसकी प्योरिटी डिफाइन होती है, एंड वी कैन सी दैट मार्क ऑन द ज्वेलरी पीस. नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर, 91.6 जो 916 हम लोग 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बोलते हैं, उसका अगर कलर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग देख रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस कि वहाँ का जो कस्टमर है या फिर वहाँ की जो लोकल पब्लिक है या जो मेजॉरिटी बायर्स है, वो क्या कलर प्रिफर करते हैं. इफ़ यू सी तमिलनाडु साइड में अगर आप देखोगे तो गोल्डन ज़्यादा रहेगा, बिकॉज पीपल प्रिफर मोर गोल्डन. कहीं पे आपको हैदराबाद साइड में देखोगे, वहाँ पे भी थोड़ा सा येलो स्टोन ज़्यादा दिखेगा. देन आप कहीं पे देखोगे कि कुछ एंटिक टच दिया हुआ है, या फिर आप नॉर्थ इंडिया साइड में देखोगे तो वो ऑरेंजी गोल्डन की जगह येलोइश आपको ज़्यादा लगेगा, विच इज़ नेचुरल कलर. तो ये कलर डिफरेंस इस वजह से आता है कि बेसिकली आप एक तो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर भी प्लेटिंग होती है, पीपल जनरली नो इट और नॉट. तो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर भी गोल्ड की ही प्लेटिंग होती है, तो वो गोल्ड कलर आप जो प्रेफरेंस रहती है उसके हिसाब से प्लेटिंग होती है.
सेकेंड थिंग इज, अगर यूज के बाद में भी आपको कलर में डिफरेंस लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एलॉयज व्हाट इज यूज्ड इन द गोल्ड ज्वेलरी. मतलब व्हेन वी से 92 या 22 कैरेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी है, तो उसमें रिमेनिंग पार्ट जो 7-8%, 9% हम लोग जो भी मिक्स करते हैं, तो वो उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स जो आप यूज कर रहे हो, वो क्या क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अगर आप सिल्वर यूज करते हो, जो कि 14 कैरेट और 18 कैरेट में ज़्यादा यूज होता है, तो उससे थोड़ा सा वाइटी स्टोन आता है, उसमें कलर लाइट होता है. अगर आप कॉपर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा जो है, जैसे रोज़ गोल्ड ज्वेलरी है, उसमें कॉपर वाला यूजेज ज़्यादा रहता है. सो देर आर मेनी मेटल्स विच इज़ यूज फॉर मिक्सिंग इवन इन गोल्ड. मतलब गोल्ड तो 92% है ही है, बट 8% में भी यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विथ. मतलब जैसे पहले बोलते थे केडीएम, एक वर्ड है जो मतलब गोल्ड ज्वेलरी में यूज होता था, तो दैट इज कैडमियम व्हाट इज यूज्ड टू सॉफ्टन द मेटल. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हार्डनिंग ऑफ द मेटल. कोई मेटल ज़्यादा हार्ड रहेगा, जैसे 14 कैरेट है. डायमंड ज्वेलरी 14 और 18 में इस वजह से बनती है बिकॉज डायमंड इज अ वेरी प्रीशियस स्टोन एंड वेरी एक्सपेंसिव स्टोन. तो वो 22 कैरेट में जनरली स्टड नहीं करते हैं बिकॉज 22 कैरेट इज अ सॉफ्टर मेटल. गोल्ड का परसेंटेज ज़्यादा है तो सॉफ्ट है. 14 कैरेट एंड 18 कैरेट इज अ स्टडी मेटल. उसकी हार्डनेस अच्छी होती है, तो जो प्रॉन्ग्स होते हैं विच इज होल्डिंग द डायमंड, इट डज नॉट लूजन इजीली. तो वो उसकी लाइफ ज़्यादा आती है. देन अगेन उसमें कौन से मेटल्स के साथ आप प्ले कर रहे हो, दैट डिफाइंस द हार्डनेस, ऑल्सो द कलर. Okay. दिस इज द मेजर डिफरेंस. Major difference between the color theory of gold. Yes. As we see lot of modern silver jewelry which comes on piece value rather than per gram value. See, per gram value of silver and piece value of the jewelry piece what we are talking about, क्या होता है कि जैसे एंकलेट्स हैं, टोरिंग्स हैं, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी आती है विच इज़ मेड इन इंडिया बेसिकली, तो दैट कम्स एज पर द वेट ऑफ द सिल्वर. पर ग्राम वैल्यू जो आप बोल रहे हो, जैसे लेट्स से 10 ग्राम्स का कोई एंकलेट आप परचेज कर रहे हो एंड 250 इज द प्राइस ऑफ सिल्वर टुडे. उस पे मिनिमम मेकिंग चार्जेस या जो भी उसकी प्योरिटी है उसके हिसाब से जो सेलर है वो आपको चार्ज करेगा. लेट्स से अराउंड 10 ग्राम्स का 2500 हो गया. बट वी सी लॉट ऑफ ज्वेलरी, मॉडर्न ज्वेलरी विच इज़ नॉट मेड इन इंडिया, और एल्स इफ इट इज़ मेड इन इंडिया देन ऑल्सो उसकी जो क्राफ्टमैनशिप होती है उसके हिसाब से उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है. लेट्स से 250 रुपीज़ आज का सिल्वर का प्राइस है, बट उस ज्वेलरी पीस को बनाने में जो मैनली आवर्स लगे हैं, जो हाथ से काम हो रहा है, या फिर इवन द मशीनरी इज यूज्ड, उसकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है. टू गिव दैट इंट्रिकेट डिज़ाइन, टू मेक इट लुक लाइक डायमंड फिनिश्ड है वो, जो स्टोन्स उसमें लगे रहते हैं उसकी वैल्यू है. एंड अगेन द पॉलिश, जैसे रोडियम पॉलिश सिल्वर के ऊपर होती है अभी जो मॉडर्न ज्वेलरी है, सो दैट दैट ज्वेलरी पीस डज नॉट टर्न ब्लैक इवन इफ यू आर यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस. आपके स्वेट वगैरह से रिएक्ट नहीं होता है वो. तो फॉर दैट रीजन अगर आप उसको पर ग्राम डिवाइड करोगे, तो जनरली पीपल कुड नॉट डाइजेस्ट इट इन मतलब सिंपल वे. इफ आई कैन से, गोल्ड ज्वेलरी जब आप परचेज करते हो, तो उसमें गोल्ड की जो वैल्यू है उसके हिसाब से ही उसी 4-5% वेस्टेज से लेके 15-20% तक लोग चार्ज करते हैं. सो विद इन दैट विंडो द आर्टिजन कॉस्ट इज कवर्ड. सिल्वर में वो परसेंटेज जो है, बिकॉज ऑफ इट्स लो वैल्यू, वो कवर अप नहीं होता है. तो 250 रुपीज़ का जो आपका सिल्वर है, उसमें क्राफ्टमैनशिप, स्टोन्स, मैनली आवर्स, वो सब मिला के उसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 500 से लेके 700, 800, 1000 रुपीज़ पर ग्राम तक भी जाती है. एंड अगर आप उसको पीस प्राइस नहीं बता के पर ग्राम प्राइस में कस्टमर को सेल करते हो, तो कस्टमर को ये लगता है कि यार ये तो चीट कर रहा है, 250 रुपये की चीज़ 1000 रुपये ग्राम में बेच रहा है. बट जो कस्टमर समझ पाते हैं या फिर जो सेलर समझा पाते हैं, इट इज़ मेजरली डिपेंडिंग ऑन द सेलर कि वो कैसे उसको समझा रहा है. कस्टमर को आप नहीं समझाओगे और आप उसको बोलोगे कि यार ये खरीद ही नहीं सकता है, ये तो बेवकूफ़ है, तो ये मतलब आप आपकी इनेबिलिटी है, वो कस्टमर की नहीं है. तो टू डिफाइन इट इन अ वेल प्रॉपर वे, वी कीप इट एज अ पीस प्राइस. एंड उसकी रीसेल वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो सिल्वर का जो प्राइस रहेगा उतना तो आपको मिलना ही है. एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग एप्रिसिएशन ऑन दैट. मतलब अगर किसी ने 2024 में परचेज किया था कोई रिंग, लेट्स से 1000 रुपीज़ में एक रिंग परचेज किया आपने विच इज़ वेइंग अराउंड 3 ग्राम्स,
तो आज उसका सिल्वर का ही वैल्यू 750 रुपीज़ तो हो गया है। तो आप ज्वेलरी इज़ अ थिंग व्हिच यू शुड एन्जॉय, मतलब खरीदने से पहले अगर कोई रीसेल वैल्यू के बारे में सोचता है, तो देन यू आर नॉट एन्जॉयिंग दैट ज्वेलरी पीस। मतलब आप उससे ज्वेलरी पीस से कनेक्ट होने चाहिए। अगर यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, मतलब आप कोई बंदा स्पोर्ट्स बाइक खरीद रहा है एंड ही लव्स टू राइड इट, वो खरीदने से पहले ये सोचेगा कि मैं यार 2 साल बाद बेचूंगा, इसके पैसे कितने आएंगे, तो यू कैन नॉट एन्जॉय दैट। सेम विद द ज्वेलरी एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट वी वेयर एंड इट डज नॉट हैव अ रीसेल वैल्यू। लेट्स से शादियों में साड़ीज वगैरह पहनते हैं लोग, 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की भी साड़ी आती है। अगर आप उसको बेचोगे तो कुछ नहीं आने वाला है आपके हाथ में, बट यू वांट टू मेक दैट डे स्पेशल, Yes. you want to feel special wearing that. Same thing with the jewelry, either you invest 1000 or you invest 10,000. Got it. So अगर जैसे आपने बोला शादियों में जो चीज़ें हम लेके उसकी रीसेल वैल्यू नहीं देखते, वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो एक बड़ा दिन होता है हमारे लिए। Correct. वी ट्राई टू यू नो एन्जॉय दैट मूवमेंट विद दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ फैब्रिक हो गया, ज्वेलरी हो गया, व्हाटएवर इट इज़। सो एग्ज़ैक्टली आई एग्री विथ यू कि जब आप उन सब चीज़ों में इसकी रीसेल वैल्यू नहीं देख रहे हो, तो यू शुड नॉट गो फॉर द सेम थिंग, you should not do for the jewelry as well. Correct. Yeah, so and jewelries are something like अगर आप मिनिमलिस्टिक वे में उसको वेयर कर रहे हो तो वो बहुत एक ऑब्जर्वेशन, अगर मैं बोलूँ कि किसी की नज़र में, जैसे आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, अगर आपके हाथ में कोई रिंग है, आपके पास कोई वॉच है या कोई एक्सेसरी आपने डाली है विच इज़ यूनिक एंड ब्यूटीफुल, आगे वाला आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसकी नज़र में है कि ये कितना प्रीशियस लग रहा है या फिर ये कितना एडमायरेबल है। सो जिन चीज़ों की वैल्यू हाई हो रही है, समहाउ आप उसको परचेज़ उस वे में कर रहे हो, सो ऑब्वियस रीज़न है कि वो उतना ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है, उसकी क्राफ्टमैनशिप की वैल्यू वहाँ पे हो रही है। करेक्ट। सी ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको कहा, वी वर टॉकिंग अबाउट सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी और द रीसेल वैल्यू। देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स which sells brass jewelry है, alloy jewelry है, इन अ स्लैंग लैंग्वेज भी से इमिटेशन ज्वेलरी है, या फिर 1 ग्राम ज्वेलरी भी बोलते हैं लोग बाग, साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। सो 1 ग्राम ज्वेलरी डज नॉट कंटेन गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बोलते हैं, इट इज़ अ नेम गिवन बिकॉज इट रिजेंबल्स गोल्ड ज्वेलरी, बट इट डज नॉट कंटेन गोल्ड। तो जो भी आप ज्वेलरी पीस खरीद रहे हो, यू कनेक्ट विद दैट ज्वेलरी पीस बेसिकली। अ मैन और अ वुमेन, ही लाइक्स इट एंड इंस्टेंटली यार ये मेरे को पिक करना है, आई वांट टू बाय इट। अब उसमें आप अगर ये सोचोगे कि यार ये सिल्वर का बना हुआ नहीं है या फिर इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, सी सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी लुक्ड एट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इट यू शुड बी कनेक्टिंग टू दैट। मतलब आप 100 रुपए की इयरिंग पहन के भी बंदा कभी खुश रहता है, जो आप लाख रुपए की पहन के भी इतने खुश नहीं हो, बिकॉज यू डोंट लाइक द डिजाइन और दैट पैटर्न। जनरली कई बार ऐसा होता है कि किसी ने गिफ्ट दिया आपको, सो वैल्यू इज ऑन द पर्सन, मतलब उसकी जो श्रद्धा थी या फिर उसकी जो लव एंड अफेक्शन था आपकी तरफ, जो आपको गिफ्ट दे रहा है, दैट शुड बी एडमायर्ड रादर देन कि ज्वेलरी पीस को एडमायर कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास गिफ्ट में आया है या आप खरीद रहे हो, उस हिसाब से यू शुड एंजॉय द पीस वॉट एवर यू आर वेयरिंग। Yes. Okay, so lastly in this conversation, one very famous myth I want to explore here, that what is the myth behind government approved seller in Hyderabad? See, every seller, either in Hyderabad or in Mumbai or anywhere around, if he is holding a GST certificate, he is a government approved seller of whatever item he is trading in. सेकेंडली, ये पर्ल ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो हैदराबाद में हम लोग जनरली देखते हैं, कई लोग यूज़ करते हैं, ये बोर्ड लगा रखते हैं या फिर कहीं पे प्रिंटेड रहता है, विजिटिंग कार्ड्स पे लिखते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दे वांट टू हाईलाइट एज ए स्कैम बोल सकते हैं, या फिर मतलब थोड़ा सा जो है ना कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। नॉट चीटिंग, बेसिकली नॉट स्कैम, बट थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, या फिर इमोशन से कनेक्ट करेगा बंदा, उसको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर जल्दी बिल्ड हो जाता है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। बट यू सी अराउंड हैदराबाद में काफ़ी रिनोन्ड ज्वेलर्स है, जैसे मुंबई में त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी है,
वो इतना पुराना ब्रांड है दैट इट डज नॉट नीड ए इंट्रोडक्शन, टीबीसी। तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेलर हूँ, दुनिया को पता है। उसी तरीके से हैदराबाद में अगर आप देखोगे मंगत राय है, तिबारूमल है, मुसद्दीलाल है, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मतलब रिनोन्ड है, दोज आर इन रिटेल इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग टाइम। तो वो इतनी छोटी टैगलाइन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मंगत राय ये यूज़ नहीं करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो जो पर्ल सेल कर रहा है विच इज़ रिनोन्ड ऑल ओवर इंडिया, मतलब इट्स अ ब्रांड रिनोन्ड ऑल ओवर इंडिया, तो वो डुप्लीकेट पर्ल सेल कर रहा है या फिर वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जैसे चारमीनार हो गया, रामोजी फिल्म सिटी हो गई, कई सारे प्लेसेस हैं, मतलब नॉट टू नेम देम बट कई सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये टैगलाइन यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक पीपल फॉल फॉर इट। To attract हाँ, टू अट्रैक्ट। the new customers who have, हाँ, बट उसके पीछे कोई ऐसे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्यों है और दूसरा क्यों नहीं है। जैसे वी यशोदा पल्स एंड ज्वेल्स, वी नेवर से दैट वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेलर। इट डज नॉट मीन दैट वी डोंट हैव गुड कस्टमर्स, वी डोंट सेल गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वी हैव मोर देन 2000 जेन्युइन रिव्यूज ऑन आवर गूगल पेज, एंड यू कैन सी दैट जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्वालिटी सेल करते हैं, पीपल आर सेटिस्फाइड विद दैट। एंड वो ऐसे ही देखो, ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता है। ब्रांड जो है वो पैदा नहीं होता, मतलब जैसे हम लोग सुनते थे ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, तो वो बच्चों के साथ में होता है, ब्रांड के साथ में नहीं होता है वो। कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो लोग बाग लेके डूब जाते हैं, इवन दो दे आर गुड इन मार्केट, दे कुड नॉट हैंडल इट। एंड कई सारे ऐसे होते हैं जो मतलब सड़क से उठ के आसमान की ऊंचाई देखते हैं। वी हैव सीन ब्रांड्स लाइक दैट। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि भाई आप कितने ट्रांसपेरेंट हो कस्टमर के साथ में, कितनी फेयर डीलिंग आप करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उस हिसाब से ये चलता है। ओके, ओके, मेक सेंस। तो जब भी कोई हैदराबाद जा रहा है तो उसे इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है। Okay, thank you so much, Rohit Agrawal, for sharing such an insightful thoughts on silver and pearls. And we are so glad to host you at Guidecast. Pleasure is all mine. How would you rate our podcast? Did you enjoy the process? See, the process is really good and rating it will be like 10 on 10. जनरली क्या होता है, देखिए पॉडकास्ट, आई एम अ वेरी शाई गाय, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, टॉकिंग टू अ गर्ल, टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आई शुड बी अनकम्फर्टेबल। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, एंड जो भी क्वेश्चंस भी इन्होंने रेज किए, इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू द फील्ड, एंड जो कि मेरे लिए या मेरे ब्रांड के लिए नहीं सही, बट जो कस्टमर्स हैं आउट इन द मार्केट, they would feel connected to the content I The feel. audience जिसको ये knowledge की most requirement है. तो तो आपका ये जो ब्रांड है वो TRP With Guidecast. with Guidecast, so it is TRP stands for the real podcast, unfiltered podcast, we can say, or unscripted podcast, we can say. so the TRP with Guidecast, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब काफ़ी लोग करते हैं बट दे चार्ज अ लॉट, या फिर जो छोटे वेंडर्स होते हैं या फिर मीडियम स्केल पे जो वेंडर्स हैं, दे कुड नॉट अफोर्ड टू एड्रेस द सिचुएशन या फिर एड्रेस द क्वेरीज। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आई फील। Actually, the purpose of starting this podcast is the same, कि इसको affordable रखना है, to to reach with the wider level of audience. जो भी podcast करना चाहे वो definitely आके करे. Markets rates अगर हम देखते हैं podcast के, it's around 75,000, 80,000 for one podcast. It's about more of promotion for them. नहीं, बट देन दे आर प्रोमोटिंग द फेसेस हु आर ऑलरेडी फेमिलियर। Familiar and तो मतलब जो बंदा आगे आना चाह रहा है, who's यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाउ डू दे गेट इन द मार्केट, मतलब उनको भी तो कोई चाहिए। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। thank you so much. This means a lot to us. Thank you so much. थैंक यू फॉर होस्टिंग मी मैम, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. If you like this podcast, please do like, share, subscribe, and show us some love in the comment section. Thank you so much, Ankita Rashpurohit, and you're watching TRP with Guidecast.
Co-powered by digitalguide.in.